السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں خوبصورت معاشرتی روایات کی امین ہماری بزرگ خواتین کے ساتھ گفتگو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بیٹا، آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہیں ہم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بڑی محبت۔ اچھا مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ آتی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں، بہت آپ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتاتی ہیں۔ اٹھ رہا تھا کہ آپ جب بھی آتی ہیں آپ نے مخصوص لباس ہی پہنا ہوتا ہے، جو جس نے پہنا وہی کئی سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہی پہنتی ہیں۔ بیٹا یہ تو اب یہ رواج پڑ گیا ہے نا، ہر دوسرے دن ہر فنکشن پہ، ہر تقریب کے لیے، ہر آنے جانے کے لیے علیحدہ کپڑے چاہیے ہوتے ہیں آج کل ہماری بیٹیوں کو، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم تو اپنی چیزوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ ہمارے پاس تو اپنے بڑے بڑے پرانے سوٹ بھی پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے وہ پہن کے، بلکہ ہم اس پہ فخر کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی جہیز کی چیزیں بھی آج تک سنبھالی ہیں۔ میں تو ایک دفعہ اپنے پوتی کو بتا رہی تھی کہ یہ توا میرے جہیز کا ہے جس پہ روٹی بناتی ہے، تو ہنستی رہی کتنی دیر، کہتی ہے یہ آپ کے جہیز کا توا ہے؟ میں نے کہا آج تک میں نے سنبھالا ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، صرف توا ہی نہیں ہے بیٹے۔ گھر میں ہم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں جو زیادہ پرانی ہیں۔ ہاں نہیں، میں آج بھی اس پلنگ تے سونی ہاں جیڑا میری ماں نے دیتا سی۔ ہم تو اپنی چیزوں سے محبت کرتی ہیں اور یہ بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دیکھو جس نے اپنے آپ سے محبت کی ہے اسے اپنی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے۔ اب آپ نے اپنے گھر کے بجٹ بھی بہت بڑھا لیے، صرف اسی سوچ کے وجہ سے کہ چیز نئی ہونی چاہیے، سوٹ نیا ہونا چاہیے، پردوں کو بہت دیر ہو گئی ہے، ان کو بدل دینا چاہیے۔ باجی اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ اگر خواتین کو ایک دن میں 3 فنکشنز میں جانا ہے تو ان کو 3 سوٹ چینج کرنے ہیں۔ دیکھو نا ذرا، اس میں وہی کپڑے پہن کے میں کیوں جاؤں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر وہی گیدرنگ ہوگی جو اس شادی میں تھی۔ بھئی آپ اتنی کمزور ہیں، آپ کی شخصیت اتنی کمزور ہے کہ آپ کپڑوں کی وجہ سے اپنی عزت سمجھتی ہیں۔ آپ کا ملنا جلنا، آپ کی گفتگو ایسی اچھی ہونی چاہیے کہ کپڑوں کی طرف دھیان نہ جائے۔ یقین کیجئے بیٹے، اپنی چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہم نے فخر کیا ہے۔ ہم نے ساری زندگی خود بتایا ہے کہ میرے اس سوٹ کو 7-8 سال ہو گئے ہیں، میرے اس کپڑے کو 12 سال ہو گئے، میرے اس فرنیچر کو 25 سال ہو گئے۔ اور ماں جی آج اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ آج یہ لون مارکیٹ میں آئی ہے اور سب سے پہلا سوٹ تمہاری بہن نے لیا۔ ہاں پت میرے گھر دے پرونے آ جان نا تے میریاں نوہاں دھیاں میرے بھانڈے پرانے پیچھے پیچھے لکاؤندیاں، اپنے کڑ اگے رکھ دیاں۔ میں تے پرونے دے سامنے اپنے نوہاں دھیاں نو کہہ دینی ہاں کہ مینوں پانی میرے پتل دے گلاس چ پیاؤ۔ اوہ تو نہ بھی کمیں تے نو تیری نے تینوں پتل دے گلاس چ پانی دینا تے تینوں نو تیری بڑی بوتل لیا کے دینی ہے۔ یہ تو آپس میں سہیلی ہیں تو انہوں نے تو اسی طرح لڑنا جھگڑنا بھی ہے، مگر سچی بات یہ ہے بیٹا کہ ہم سب اللہ کے فضل سے اپنی چیزوں سے آج بھی محبت کرتی ہیں، بے شک وہ سالوں پرانی ہو چکی ہے۔ پت میں تے اج بھی اپنے ویاہ والا سوٹ سنبھال کے رکھیا ہے، کدی کدی کڈ کے وینی ہاں تے روڑا نکل جاندا ہے۔ کیوں؟ پورا جو نہیں آمدا۔ اچھا شادی کے وقت سلیم سمارٹ ہوں گی نا، آپ تنگ ہو گیا ہوگا وہ سوٹ؟ تنگ نہیں بیٹے، کھلا ہو گیا ہوا ہے، شادی کے وقت تو اس سے ڈبل تھی۔ میری تے ماں نے جیڑی مینوں گھنگروں والی سرمے دانی دتی سی وہ میں آج تک سانبھ کے رکھی۔ ہاں کدی کدی وہ سرمچو کڈ کے دے چ لت پسا لیندی۔ بات یہ ہے کہ اصل شخصیت ہی یہ ہے
जो किरदार है वो यही है कि अपनी चीजों से प्यार किया। जिसने अपनी चीजों से प्यार नहीं करना, अपने घर से प्यार नहीं करना, हाँ जी। उसने किसी और से या अपने वतन से क्या प्यार करना। बिल्कुल। मैं ते अपनी जहेज दा जेवर ही अपनी दोवां धीआं नूं पाया, एक चीज भी इधर उधर नहीं होने देती। मैं ये समझती हूँ जुनैद बेटे कि अगर आप अपनी पुरानी चीजों से प्यार कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि वो फिर आपसे प्यार हाँ करें। जी। अगर आप पुरानी चीजों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो ये ज़हन में रखें कि घर में एक दिन आप बन जाते हैं, फिर आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते। अपनी पुरानी चीजों से प्यार करके आप बच्चों को ये भी सिखा रहे होते हैं कि बुजुर्गों से मोहब्बत करनी। बिल्कुल। यकीन कीजिए पुरानी चीज को फेंकते हुए दिल को हाथ पड़ता था। अगर वो किसी तरीके से इस्तेमाल के लिए जाया हो जाती थी तो उसे कुछ ना कुछ और तरीके से इस्तेमाल में ले आते, उसकी कोई और चीज बना लेते थे। अपने पुराने सूट जो खराब हो जाते थे, जी जी। मैं तो उन्हीं को काट वाट के तो अपने बच्चों के बना लेती थी। ਤੇ ਪਾਏ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਛਿਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲਾ ਪੂਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੋਗੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇਸ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਪਈਏ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। कोई भी चीज फेंकने का तस्वुर ही नहीं था। अपनी चीजें खराब क्या पुरानी क्या उनको किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल में लाते रहते थे। ये घी के डब्बे खाली हो जाते थे तो उनको ढक्कन लगवा के तो उनमें मसाले वगैरह रख लेते थे। लेकिन माँ जी आजकल जितने का ढक्कन लगता है उतने का प्लास्टिक के डब्बे आ जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि जरूरी है कि जो हम करते रहे हैं वही करें। बात तो इतनी सिर्फ करना चाह रही हूँ कि पुरानी अपनी चीजों को जो इस्तेमाल में आ सकती है हाँ जी। बेदर्दी के साथ फेंक ना दिया फेंकना जाए। उनको पुरानी समझ के ना फेंक दो। जिस तरह बुजुर्ग जो हैं वो जितने भी पुराने हो जाए चले वो दुआएं देने के इस्तेमाल में तो आ जाती हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। बेटे अब आप घरों में तरबियत करते हुए बच्चों को आपस में मियाँ बीवी का एक का नहीं होता तो क्या बच्चों को सिखाना है। अगर बाप बच्चे को झाड़ रहा हो डांट रहा हो किसी बात पे, फौरन पास से माँ बोल पड़ती है कि क्यों डांट रहे हो, हाँ जी। इसने क्या कर दिया है। अगर इसी तरह माँ डांट रही हो तो बाप बोल पड़ता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम तो बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। अगर बाप किसी बात पे बच्चे को डांट रहा होता था तो पहले तो ये जहन में आता था फौरन कि ये सही डांट रहा है। हाँ जी। और अगर गलत भी डांट रहा होता तो उसके सामने बच्चे के सामने ही नहीं उससे झगड़ना शुरू कर देते थे खामन के साथ। बाद में खामन को बता देती थी कि ये बात ऐसी नहीं ऐसे थी। सही। और फिर खामन जो है वो भी बड़ी अक्लमंदी से उसको हैंडल कर लेता था। हाँ। अब तो बच्चों के सामने माँ बाप का ही इत्तेहाद नहीं है, माँ बाप का ही एक का नहीं है। माँ जी आपके दौर में तो पूरा जो मोहल्ला होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी बच्चे की बच्चे तरबियत का करना। हाँ, अब तो कोई देखता नहीं है, माँ बाप नहीं देखते बच्चों को, किसी और ने क्या देखना। हाँ जी। ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਲੇ ਹੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाय। मैं एक स्कूल दे च नौकरी करनी सा। मगर उस वक्त जो हमसाए भी होते थे ना, मोहल्लेदार बच्चे अगर उनके पास जाते थे जी। तो वो भी बाकायदा उसकी तरबियत का ख्याल रखते। कोई ऐसी चीज जो बच्चे में देखते थे फौरन उसे डांट हाँ देते जी। थे और बिला वजह की डांट डपट भी नहीं होती। हाँ। बच्चों की तरबियत इनफैक्ट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी ना। हाँ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੂ? पता नहीं कोई अंग्रेजी बोली। बात
बात ये है जुनेद, किसी ना किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। ना मियाँ बीवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, ना बच्चों की तरबियत का एहसास है। अपनी चीजों से, अपने बच्चों से, अपने घर बार से मोहब्बत नहीं करेंगे तो वहाँ उस घर में तरक्की हो ही नहीं सकती। माँ जी मोहब्बत तो खैर आज भी मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल शायद उसका एक्सप्रेशन जो है वो मौसर नहीं है। हाँ जी। हाँ चलो ठीक कह रहे हो तुम, आखिर तुमने भी घर वापस जाना है। ठीक है, खुश रखना चाहिए घर वालों को भी, मगर बेटे प्रैक्टिकली भी कुछ करना चाहिए। एक और बड़ी अजीब सी चीज घरों में आ गई हुई है जी। खवातीन की आदत में एक बड़ी बुरी आदत बनती जा रही है। बच्चों की तालीम और तरबियत जो है ना जी, हाँ जी, वो हम पहले 1-2 साल घर में ही करते थे। बिल्कुल। अब 3 साल का बच्चा होता है, उसको जाके स्कूल में पकड़ा आती है, सिर्फ इसलिए कि मेरी जान छूट जाए, मुझे ना कुछ करना पड़े। हाँ जी। हम भी अल्लाह के फजल से 3 साल क्या 1 साल के बच्चे को ही पढ़ाना शुरू कर देते थे, मगर घर में आपस में सारे लोग बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर देते थे। तालीम के हवाले से भी हाँ जी। कायदा लेके आ जाते थे, उसको फिर बातों बातों में कलमे सिखाना, उसको यसरुल कुरान पढ़ाना, घर में ही उर्दू का अंग्रेजी का कायदा शुरू करवा हाँ जी। देना। तो बच्चा जो है 5 साल का भेजते थे स्कूल में। हाँ जी। उतनी देर तक वो पहली क्लास के लिए घर में ही तैयार कर लिया जाता है। अब तो हम छोटे से बच्चे को ले जाते हैं स्कूल, प्ले ग्रुप है जी, ये अब नर्सरी शुरू हो गई, प्रेप, प्री प्रेप, हाँ जी। प्रेप है, प्री प्रेप है। बच्चा बेचारा उसका वो शऊर ही नहीं पकड़ता, डिप्रेस हो जाता है। शुरू में ही उसको इस तरह बिहेव करते हैं कि वो तालीम में उठ ही नहीं पाता, उसे होश ही नहीं आता। हाँ जी। अब तो माँ जी जदीद साइंस और एक्सपर्ट्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल के करीब भी नहीं जाना चाहिए। 5 साल पुत्र की मैं आज तक स्कूल दे नेड़ियों नहीं लंघी। मैंने कब कहा क्या प्रिंसिपल? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਫੈਲ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਅਲਫਨਾਰ ਬੇ ਬੱਕਰੀ ਪੇ ਪੰਖਾ, ਐਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਬੇ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ये तो जो बच्चे के ज़हन में बैठ जाए। ये जो गोगी है, ये जब छोटी सी होती थी तो ये अलफनार बे बकरी कहती नहीं थी, ये तो कहती थी अलफ ऐडी बे मोटी। अलफ ऐडी बे बोटी पे पक्की। नहीं बेटे पे पूरी। नज़ीर मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। गोगा जी आपके बारे में ये तासुर आम है कि आप हस्बे हाल के बाद और हस्बे हाल से पहले सिर्फ पलंग तोड़ने का काम करते हैं। ये नहीं सोते रहते हैं खा पी के। हाँ और क्या, सोशल वर्कर हूँ मैं तो। अल्लाह ने जब से शोशा बनाई है इन्होंने फिर शोशा वर्कर शुरू कर। मैं बताता हूँ कि सोशल वर्क कहते हैं किसे सर? सोशल वर्क किसे कहते हैं? एक अज़्म हिम्मत की दास्तान बताने लगा हूँ आपको, और वो जो अज़्म हिम्मत की दास्तान है वो खवातीन ने रकम की है। सिर्फ 5 अदद खवातीन। हमारा जो इलाका है, थर का इलाका है यहाँ पे सिंध का, उस पे उमरकोट जिला, उसी जिला उमरकोट का एक गाँव है रतनोर। वहां पे आज से 5 साल पहले 5 अदद खवातीन को अपनी किस्मत बदलने का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि हम पीने का पानी लाने के लिए सैकड़ों मील का सफर करते हैं, ये हम सफर अगर इसी तरह जारी रखें, हम पानी तो लेके आते हैं, हम पानी सिर्फ अपने पीने के लिए लाते हैं, अगर हम थोड़ा ज्यादा पानी ले आए तो उसका कोई इस्तेमाल सोचा जा सकता है जी। अच्छा, उन खवातीन के इस अज़्म को जिला बख्शी एक सरकारी इदारा है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा कि आप जो पानी लेके आती हैं तो आप यहाँ पे दरख्त उगाएं,
कौन सा दरख्त उगाए? उन्होंने कहा जी बेरी का दरख्त उगाए। अच्छा। अब ऐसी जगह पे दरख्त लगाना जहां पे सब्जे का कोई तस्वुर ही नहीं है, वो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब लगता था। बिल्कुल सही। लेकिन उनका मतलब अज़्म और हिम्मत जो थी वो इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने 5 साल पहले वहां पे गांव में 50 बेरी के दरख्त लगाए और 5 साल बाद यानी इस साल उन्होंने उन 50 दरख्तों में से उसका सिर्फ 40% फल बेचा है, 2 लाख रुपए कमाए हैं और 2 साल बाद 30 और दरख्त लगाए, अगले साल 30 और दरख्त लगाए, उन दरख्तों की तादाद में भी इजाफा किया और बाकी जो 60% फल है वो इलाके में उन्होंने फ्री तकसीम किया और अपनी बच्चियों को जहेज में भी उन्होंने बेरी के दरख्त और बेर का फल जो है वो तोहफे में दिया। वाह जी वाह। अच्छा, अब उनका प्रोजेक्ट ये है कि ये जो बाकी इलाके में भी बेरी को यहाँ की एक बड़ी सौगात बनाया जाए और बेरी जो है वो बहरहाल एक ऐसी चीज है जो हमारे कल्चर में बड़ी एक खास हैसियत उसको हासिल है। बिल्कुल सर, इस बेरी के दरख्त पे तो मुहावरे बने हुए कि जिस घर बेरी हुए थे वट्टे जरूर आउंदे ने। वट्टे भी आते हैं। ये एक बार मैंने भी बचपन में अपने बारे में कह दिया था, मेरा बड़ी देर तक रिकॉर्ड लगता सर ये भी मुहावरा मिलता है, बेरियां नाल बहारा। यार 11 नाल 12 सर वो तगड़े लोगों के लिए ना 11 नाल 12 माड़े बच्चे नु ते बेजन ते बाहर जाए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की खूबसूरत बात यह है कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। अच्छा। जदीद टेक्नोलॉजी इंतहाई सस्ती बल्कि मुफ्त में। ये खवातीन जो है ये अब पूरी दुनिया में जो इरिगेशन का यानी आबपाशी का एक सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन है, यानी कतरा कतरा पानी दिया जाता है फसलों को ताकि पानी का ज़िया रोका जा सके। तो इन खवातीन ने ये जो ड्रिप लगती है, मरीजों को ड्रिप लगती है, ये सरकारी अस्पतालों से लेके आई, उनको साफ करके उनके जरिए उन पौधों को, उन दरख्तों को ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया। मुफ्त में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपने वो इस्तेमाल में ले। ये पांचों जो हमारी बहनें हैं ये कई साल फिर बेचारी उधर से हिली नहीं है। क्यों सर? अच्छा। कोई इनको रिश्तेदार कहता भी था ना कि साढ़े घर आ वो आगे से कह देती है किस तरह आवा मेरी बेरी नु ड्रिप लगी। अच्छा, तुम यार ये देखो कि ये जिस तरह इन 5 खवातीन ने मतलब तरक्की के एक सफर का आगाज किया है, बाकायदा एक डिटर्मिनेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ। अब देखो सिंध के बारे में हर बंदा जानता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सिंध की जो जमीन है इस वक्त 60% के लगभग ऐसी जमीन है जो पानी ना होने की वजह से वो काबिल काश्त नहीं है और उस 60% में से कम 38 लाख एकड़ ऐसा है जो हमवार है। ये नहीं है कि वो टीले हैं और वो ऊंच नीच है और पहले उसको हमवार करना पड़ेगा। 38 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जो हमवार है लेकिन पानी नहीं है। उस 38 लाख एकड़ में से सिर्फ 1 लाख एकड़ पे अगर बेरी के दरख्त लगा दिए जाए, ये जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है इसी में इसको शामिल कर लिया जाए, 38 लाख एकड़ में से सिर्फ 1 लाख एकड़ हमारी इन्हीं बहनों के जरिए ये काम कर लिया जाए, सिंध की खवातीन के जरिए, तो ये बाकायदा उस इलाके की तकदीर बदल सकते हैं। 18 अरब रुपए के तो सिर्फ बेर हम पैदा कर सकते हैं। 18 अरब दे बेर खाड़े होते बाद गिटका भी मारो एक दूसरे वो भी कितनी देर शुगर लगा रहे थे। और तुम यकीन करो कि इसके 1 लाख एकड़ पे कमोबेश 2 करोड़ बेरी के दरख्त लगते हैं। अब देखो जहां पे बेरी लग जाती है ना वहां पे जमीन की जरखेजी में भी इजाफा हो जाता है। ये मतलब आम कॉमन बात है, कोई मैं राज की बात नहीं बता रहा, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है। फिर उससे भी बड़ा फायदा ये हो सकता है कि हमारे यहाँ हर गुजरते साल के साथ शहद की मक्खियों में कमी वाक़ई हो रही है। हालांकि हम $2 करोड़ शहद एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं, $2 करोड़ कमा रहे हैं। अगर हम इस जमीन पे बेरी के दरख्त लगा लें तो हम अपनी शहद की एक्सपोर्ट में 20-25% इजाफा कर सकते हैं। बेरी का शहद तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महंगा भी सर। अच्छा, इसके अलावा इस जमीन पे चीकू की काश्त बहुत आसानी के साथ की जा सकती है कि पानी ना भी हो तो भी चीकू का जो है वो दरख्त उगाया जा सकता है। अच्छा। फिर जो सबसे बड़ी फसल है जो सबसे आसानी के साथ काश्त की जा सकती है, जिसकी हर गुजरते दिन के साथ डिमांड दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, वो है जानवरों का चारा। उसमें एक ये जो बाजरा है
हाँ जी। और फिर रोड्स ग्रास है ये, और जवार है, ये इन इलाकों में बड़ी आसानी के साथ काश्त की जा सकती है। आपको बारिश का पानी चाहिए एक बार, ये जवार और बाजरा तो बहुत ही आसानी के साथ काश्त हो जाता है। रोड्स ग्रास के लिए ये है कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो वो जाहिर है उसकी फसल भी जो है वो ग्रास की ज्यादा होगी, और उसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। उसकी आप हे बना के बेच सकते हैं, यानी उसको खुश्क करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अंदरूनी मुल्क उसकी बेशुमार डिमांड मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैं तो जल्दी छुट्टी लेके जा रहा हूँ। ओ यार मेरा मोबाइल तो दे दो खुदा के लिए, मेरा यार वो मारेंगे ज़ूलॉजी की क्लास है, जरा बहुत ज्यादा संजीदगी किसकी सर? चाहिए। ज़ूलॉजी की क्लास, ज्वालोजी, जलीलोजी, ज्वालोजी की क्लास है। अकल करो कुछ, यार जानवरों के बारे में क्लास है। यानी हमारे बारे में बताने हाँ लगे। जी, डंगरों के बारे में क्लास है। चलो को के आगे सीट ले आओ। आगे कौन सी आइसक्रीम मिल रही है? अच्छा जी, आज हम आपका इल्म जानने की कोशिश करेंगे मछलियों के बारे में। जाहिर है मछली के बारे में कहा जाता है कि वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, और हर जबान में ये मुहावरा भी बोला जाता है कि बगैर पानी के जैसे मछली। हाँ जी, गाना भी है ना जी, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। हाँ, लेकिन एक मछली है जो पानी के बगैर चंद मिनट नहीं, चंद घंटे नहीं, चंद दिन नहीं, सालों साल जिंदा रहती है। सर ये हो ही नहीं सकता। कौन सी? जुल्फी। मैं केचुए की बात नहीं कह रहा, मछली की। मछलियां भी पतली पतली होती है। एक मछली को तो सांप मछली भी कहती है। अच्छा जी, एक लंग फिश है, लंग फिश यानी फेफड़ा मछली। ये अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सलाहियत दी है कि वो अपने इर्द गिर्द एक खोल तैयार कर लेती है, कैकून तैयार कर लेती है, और मिट्टी के नीचे चली जाती है, और सांस लेने के लिए कुदरत ने उसको एक ट्यूब दी है जो बाहर आ जाती है, सांस लेती है उस ट्यूब के जरिए, और वो 3 साल तक खुश्की पे रहती है। वो लंग फिश। सर वो जो पाइप बाहर आया होता है उस पे दिल करे मज पैर रख के लंघ जाए। मच्छी का तो नीचे साह कुटिया गया। यार मच्छी ने कह रहे गुजराती जगह च घर बना लिया। थैला किसी दिन चलते चलते उसको स्ट्रॉ समझ के मुंह को लगा, घर आके कहे कि मैंने आज मछली पी है। अच्छा जी, दुनिया में रिकॉर्डेड सबसे ज़ईफुल उम्र जो मछली है वो कौन सी है, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा लिखा गया? बेल मछली हो? नहीं, डॉल्फिन नहीं, वो भी यही है, लंग फिश ही है। ऑस्ट्रेलिया में 2003 में एक लंग फिश की उम्र रिकॉर्ड की गई थी, 65 साल की उम्र थी, जो रिकॉर्डेड एक स्पीशी की उम्र तय की गई। 65 साल। 65 साल की तो मेरे चाचे की उम्र। तुम्हारे चाचे के जिस्म पे चाने। अरे उसके जिस्म पे तो जाने नहीं है, वो टांट मारता तो चानन हो जाता है। अच्छा, आमतौर पे मछलियों के पास लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन कुदरत ने लंग फिश को लंग्स भी दिए हुए हैं और गिल्स भी दिए हुए हैं। बहुत अच्छी, यानी इसने हाथ वाला नलका भी लवाया हुआ और मोटर भी लगवाया। सर ये लंग फिश मुझे कहाँ मिल सकती है? वो तुम्हें मिलेगी भी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। अच्छा जी, देखिए मछलियों के पास ना तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बोलने के लिए, आवाज निकालने के लिए, ना वो प्रॉपरली बोल सकती हैं, एक तरह से वो गूंगी होती हैं। बोलती नहीं तो ये क्या करती है? लेकिन इसके बावजूद जो है वो मछलियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, मछलियां आवाजें भी निकालती हैं, मछलियां चीखती भी हैं, मछलियां सिसकती भी हैं। वो तमाम आवाजें जो इंसान के मुंह से निकलती हैं, वो तमाम आवाजें मछलियां निकालती हैं बगैर वोकल कॉर्ड्स के, बगैर जबान के। अन्य मैंने सुना है एक दूसरे को बताती भी हैं, आपदा उधर न जामी उधर मगरमच्छ फिर। अगो आपदा कहती फिक्र ना कर, तेरे भान दा दोस्त है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। मछलियां ये आवाजें जो निकालती हैं वो अपनी हड्डियों की मूवमेंट से निकालती हैं। अच्छा। अपने दांत पीसती हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात शौहर ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि जब मादा दांत पीसती है तो क्या होता है। तो सर दांत क्यों पीसती हैं? उनका खामद भी हस्बयाल करता है। कहा था ना कि क्लास में जुगत नहीं करनी। नहीं सर, ये जुगत नहीं है, ये फैक्ट है। सर अगर इसी तरह क्लास में जुगते होती रही तो मैं बाइकआउट कर दूंगा सर। ये जुगत नहीं थी नैयर बुखारी साहब।
मैंने वैसे बात की है। यार एक बच्चे को अगर क्लास में जुगतों से एलर्जी है, वो सीरियस पढ़ना चाहता है, जेवरे तालीम से खुद को रास्ता करना चाहता है, तो बर्दाश्त करें ना। अच्छा जी, ये बताएं कि वो कौन सी मछली है जिसका ना खून होता है ना दिमाग होता? तली हुई मछली जी। गोगा सर, सर इसका खून नहीं है, इसमें हवा है। इसका दिमाग नहीं है, कभी आप इसे रोटी खाते थे। दिमाग हो तो इसको पता हो कि बीच में से हड्डी निकालते हैं। ये स्टार फिश है, और स्टार फिश के बारे में कहा जाता है कि ये मछली नहीं है, ये फिश नहीं है। एक स्टार फिश के बारे में और एक जेली फिश के बारे में कहते हैं कि ये मछली की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। सर जेली फिश वाकई अजीब सी होती अजीब है, सी जेली होती सी। है, yes। और वैसे ऐसे बुलबुला सा फिर रहा होता है बीच में पानी के। सर जी, ये मछली मार्केट में नहीं आती, मेरा ख्याल है समंदर में ही रहती है। तो कोई गल नहीं, तुम नान और चटनी लेके समुद्र पे चले जाया करो। मच्छी हथ आ गई ठीक है, नहीं तो शोरे दा ते समुंदर भरे ही। यार देखिए प्लीज, आप क्लासरूम में बैठे, कम से कम अपनी टोन और टेम्पो जो है वो स्टूडेंट्स वाली रखें। बिल्कुल उर्दू में जुगत करें अगर करनी तो है, वो तो आपने बाज ही नहीं आना ना। बिल्कुल सर, आप भी यही चाहते हैं। आप कौन सा डॉक्टर सफदर महमूद हैं? जब मैं टीचर हूं तो टीचर हूं। वाह वाह वाह। अच्छा मेरी बात सुनो यार, वो कौन सी मछली है जिसकी पलकें होती हैं? वाहिद मछली है। सर पलकों वाली को छोड़े, को ऐसी मछली नहीं है जिसपे बेसन लगा हो। सर माशाल्लाह आपका बड़ा नॉलेज है, आप तो मछेरों को भी पीछे छोड़ गए। लेकिन आपकी सारी जो कंसंट्रेशन है वो जुगतों पे है, इल्म हासिल करने पे नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा है, वो कौन सी मछली है, वाहिद मछली है जिसकी पलकें होती हैं? ये बताओ, सिर्फ आप लोगों को आदत पड़ी हुई है जुगतों की? बेवकूफ। हाँ बताएं, आप बताएं। पलकों वाली सर? जी पलकों वाली। सर पलकों वाली मछली जो है वो मैं कभी ब्यूटी पार्लर गया नहीं जी। मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं कि पलकों वाली मच्छी कौन सी। पलकों वाली मछली सर मेरे ख्याल बहुत तेज पानी में रहती है। पलकों वाली एक ही मछली है और वो शार्क मछली है। शार्क के पलकें होती हैं। सबसे खतरनाक मछली की पलकें जो काटती है सर जी। और हमारे यहाँ खवातीन मसनूई पलकें लगवाती हैं। अब शार्क में और खवातीन में क्या मुमासलत है? सर आप जुगतों से मना कर रहे थे, ये आप कायदे आज़म का फरमान। ये तारीखी हकायक है, ये इंसानी हकायक है, हकायक अर्जी है। यानी हमारा लाफ्टर जुगत है और अपना लाफ्टर हकायक अर्जी है। सर ये शार्क की पलकें होती हैं तो इसका मतलब है इसके पास मस्कारा भी होता हो, और इसका तो बेचारी का मस्कारा पानी में गिला हो जाता हो। अच्छा जी, ये मछलियां जो है ये एक कितना वसी मौजू है कि हम एक क्लास में इसका अहाता नहीं कर सकते। हम इसको आइंदा भी जारी रखें। इंशाल्लाह। सर दुकान अगर मच्छी की खुली रहती है तो हमारा सेगमेंट भी खुला रहना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। असली नाम की बजाय हम अपने निक नेम यानी जो बड़ा हमें पसंद है खुद ही रख लिया हुआ है। किसी ने डैशिंग बॉय रखा हुआ, किसी ने सनी, किसी ने कूल मैन। अमन से मैंने देखा है कि गौरियर के बंदियां ने लिखे है कूल मैन। जिद्द कोलो लंगो तो से कौन लिया। जी मेरा कसूर नहीं, पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है। जनाब, आज मैं बात ये करनी चाह रहा हूँ कि किसी का नाम बिगाड़ना जो है ये तो बहुत बुरी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मगर कुछ लोग प्यार से नाम रखते हैं जिसे हम निक नेम कहते हैं। वो प्यारा लगता है, वो कोई ऐसी बात बुरी नहीं है। वो किसी वक्त मजबूरन भी रखना पड़ता है। अब नाम ये लंबा हो तो इसको प्यार से कुछ और रख लेते हैं, या वैसे ही बच्चा पोपलू हो, ये टैप लग रहा हो तो वालिदैन के मुंह से प्यार से कोई नाम निकल रालू जी। रालू रालू नहीं गोंगलू। रालू कहते थे तुम्हें तुम्हारे उस्ताद फखरी वो साहब। तो तुम्हारी बात ठीक है यार, बताने वाली बात तो नहीं ना होती। अच्छा ये जो निक नेम होता है ना, ये प्यार से जो रखा होता है दूसरा नाम, ये अक्सर अजीज व अकारब या वालिदैन रख देते हैं, या कोई भी फूफी चाची ताई रख देते हैं, वो फिर चल निकलता है। मगर जो छेड़ होती है ना, जिसे हम नाम बिगाड़ना कहते हैं, ये खास तौर पे वो लोग रखते हैं जिन्हें दी ओदे नाल लग दी हुंदी।
अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात यह है कि हमारे मुआशरे में शर्मो हया और खामद की इज्जत जो है ये बहुत माशाल्लाह पाई जाती हाँ है। जी। और नहीं जरा हालात बदल गए ने मगर थोड़ा सा पीछे ध्यान मारे ना तो याद आता है कि वाकई यार खवातीन जो हैं वो बहुत इज्जत करती थी अपने खामदों की और उनका नाम तक नहीं लेते। हाँ जी। उनको मतलब उन्होंने मेरे उन्होंने कहा था या फिर सुनिए लगता बंदा बोला है कह रहे ने सुनिए, या फिर अपने किसी बच्चे के नाम से के पप्पू के अब्बू। अच्छा तुम तारीख उठा के देखो, हमेशा शौहर को यही कहा है, नाम भी यही रखा है, सुनिए, कभी कहने को भी नहीं कहती बोलिए सुनिए। यू आर मेंट फॉर दिस, आप सिर्फ सुनने के लिए निकाह में बंधे हैं, सिर्फ सुनिए, कभी नहीं कहा बोलिए। निक नेम में भी एक राज पिन है जो एक मजलूम खामद ही बेचारा निकाल सकता है। और इस तरह के नाम जो हैं ये बड़े पॉपुलर होते हैं। बिल्कुल खामद का नाम नहीं थी लेती खवातीन। अच्छा, इस हवाले से कोई ये माजी की बात नहीं है, आज भी गैलप वालों ने जो सर्वे किया है उसमें ये बताया कि हमारे यहाँ आज भी 48% खवातीन अपने खामद का नाम नहीं लेती। अच्छा। और इन 48% में 21% खवातीन जो है वो खामद को उसके पेशे के हवाले से बुलाती है। अच्छा। डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, मिस्त्री जी, वकील साहब। इस हवाले से पता नहीं एंकर साहब कहती है कि नहीं। मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सरताज ही कहती है। वाह। तो जी सीरियस बताएं कि भाभी आपको क्या कहती है? सच सच बता दूं? बिल्कुल। यार मेरी बेगम मुझे नेद जी कहती, अच्छा। यानी जुनैद का जीम निकाल के अपने जूते की जीम में डाल। यानी इस भाई ने अपनी भी इज्जत नहीं बढ़ाई, साडी तो बेइज्जती करानी दे। अच्छा जी, इनमें 12% जो खवातीन हैं हमारे यहाँ वो आज भी यही कहती हैं, सुनिए अजी क्या कहने, अजी पप्पू के अब्बू, अजी मुन्ने के अब्बा, यही कहती हैं। जी। अच्छा, 9% खवातीन उनके उर्फी नाम से बुलाती हैं, मतलब भट्ट साहब, मियाँ साहब। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, अपना ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, मीर साहब, डार साहब गल सुनो, मीर साहब इधर आना। अच्छा, जो सबसे कम एवरेज है ना जी खवातीन की, हाँ जी। वो प्यार से बुलाने वाली। यानी प्यार से कोई निकनेम रखा हुआ है, जैसे अजीजी जान या अपना कुकू जी या अस्सू, आसफ को अस्सू या परवेज को पेजी। ये सिर्फ 10% है, बाकी सारी जालम ही ने। जैसे रमजान को मन्ने। हाँ जी, 48% तो ये सारी हैं मिल मिला के। हाँ जी। और 52% ऐसी लड़कियां हैं, खवातीन हैं हमारे यहाँ जी जी। जो नाम सीधा लेती। अच्छा। अफजल बात सुने, हाँ। असगर बात सुने, सीधा नाम लेने वाली जो खवातीन वो ज्यादा सीधा हो गई हैं। सीधा ही है। हाँ। हाँ जी हाँ जी। यार हमारे गोगा जी की बेगम बहुत प्यार से बुलाती है, नाम रखा हुआ है। अच्छा। टुट पैने। एक चीज टूटने वाली है ही नहीं, भावे थोड़े मारो ये भी टूट पड़ा। ले भाई आज तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, अब तुम्हें पर जाई के ना भी टुट पैने आ तो तू टुट के खिलर जा सारा, अब इकट्ठा कर दी फिरेगी। अच्छा जी, ये तो हम अपने यहाँ की बात कर रहे थे। अमेरिका में जो एक सर्वे हुआ है पूरी दुनिया के हवाले से जी। उसमें यह बताया गया है कि 88% यानी 88% खवातीन जो हैं हाँ जी। वो खामदों को इसी तरह निक नाम, लाड प्यार, ये वो से बुलाती हैं, असल नाम से नहीं बुलाती। 88% खवातीन। जे सारियां गोरियां भी पा लईए तो फिर एवरेज बढ़ जाती है लाड प्यार वाली। अच्छा, निकनेम के हवाले से भी एक बड़ी खतरनाक सर्वे है। जी। क्या सर? अगर औरत का मूड अच्छा हो तो वो निकनेम प्यार वाला या क्यूट होता है। अच्छा। अगर मूड अच्छा ना हो तो ओही निकनेम फिर जड़ा वो जानवर दे नाम च बदल जाता है। जैसे प्यार से कह रही है बब्बू और गुस्सा चढ़े आए वे बघियाड़ा। यार बेगम शौहर को जिस नाम से मर्जी बुलाए, निक नेम से बुलाए, असल नाम से बुलाए, उसके दिल में जो छुपी हुई मोहब्बत होती है ना वो एक जैसी होती है। यानी प्यार आया हुआ है तो कह रही है कुकू, मूड खराब है, कूड़ मगज।
अच्छा, निकनेम की रवायत जो है वो फेसबुक ने भी अक्सर बदल के रखा है। हाँ अब हम अपना निकनेम खुद ही रख लेते हैं, हाँ जी यानी असली नाम की बजाय हम अपने निकनेम यानी जो बड़ा हमें पसंद है खुद ही हाँ। वो रख लिया हुआ है। किसी ने डैशिंग बॉय रखा हुआ है, किसी ने सनी, किसी ने कूल मैन। अमन से मैंने देखा है कि गौरियर के बंदिया ने लिखे है कूल मैन, जिसे कोलो लंगो तो से अकाउंट लिया। जी मेरा कसूर नहीं, पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है। अच्छा, एक सर्वे ये भी बताता है कि लड़कियों के निकनेम जो होते हैं वो ये क्यूट होते हैं। हाँ जी। बिल्लो, हाँ जी। गुलाबो और गुड्डी, परी, चिंदी, नूरी, क्यूट होते हैं। और लड़कों के निकनेम असलम साई, दीमा कुकड़, जवेद ढोड, असलम तेली, ओ या अल्लाह खुदा दे वास्ते मुबशर मडगाड। हाँ जी पूरे शेर बनाए होते ने, असलम साई, अदरनाई। हाँ, बड़े बड़े अजीब नामों से पुकारते हैं, रवाये कसते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, इस हवाले से अगर कराची की तरफ चले जाएं तो निकनेम ज्यादा हंसी वाले हैं। अच्छा। पहाड़ी, लंगड़ा, चिमटा, गुलेल, पसीना। बंदा पूछे ये कौन से नाम है? जेडी चीज सामने देखे वो नाम रख देते हैं कि ये यही है। लकड़ मंडी, अदरक। हाँ हाँ, मैंने खुद सुना है, उजैर अदरक। मैं कह यार तुम तो जाके बंदर के पिंजरे के कह सकते हो, बंदर क्या जाने उजैर का स्वाद। जुनैदा जिन, डड्डू, आड़ू ग्रेनेड, नईमा कैंची, गोगा टेर। यार निकनेम रखना है, उसकी हालत नहीं बतानी। गोगा बहुत ही टेर। जी जी, पता चले भाई जी बच्चे दे स्कूल जाने वास्ते ट्रैक्टर ट्राली लवाई। किसी बात ये कि किसी भी रिश्ते या ताल्लुक को जितनी मर्जी मोहब्बत से बांधा जाए, अगर इज्जत ना हो तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।